Class 9 History. Welcome to this video. Class 9 History. Class Class 9 History Chapter 5 Part 2. Class 9 History Chapter 5 Part 2. Uh, These Forest Act changed the lives of pastoralists. They were now prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. Even in the areas they were allowed entry, their movement were regulated. They needed a permit for entry. The time of their entry and departure was specified, and the number of days and the number of days they could spend in the forest was limited, and the number of days could spend in the forest was limited. Pastoralists could no longer remain in an area even if a forage was available. The grass was succulent as suitable succulent, and the undergrowth in the forest was ample, and they had to move because the forest department permit that had been issued to them now ruled their lives. The permit specified the periods in which they could be legally within a forest. If they overstayed, they were liable to fines. If they overstayed, they were liable to fines. Third, third Third, British officials were suspicious of nomadic people. They distrusted mobile craftsmen and traders who hawked their goods in village, and pastoralists who changed their place of residence every season, moving in search of good pasture for their herds. The colonial government wanted to rule over a settled population. They wanted the rural people to live in a village in a fixed place with fixed rights on particular fields. As such, a population was easy to identify and control. Those who were settled were seen as peaceable and law-abiding. Those who were nomadic were considered to be criminal. In 1871, the colonial government in India passed the Criminal Tribes Act. By this act, many communities of craftsmen, traders, and pastoralists were classified as criminal tribes. They were stated to be criminal. They were stated to be criminal by nature and birth. They were stated to be criminal by nature and birth. Once this act came into force, the communities were expected to live only in notified village settlements. They were not allowed to move out without a permit. The village police kept a continuous watch on them. Fourth, to expand its revenue income, the colonial government looked for every possible source of taxation. So tax was imposed on land, on canal water, on salt, on trade goods, and even on animals. Pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on the pastures. In most pastoral tracts of India, grazing tax was introduced in the mid 19th century. The tax per head of cattle went up rapidly, and the system of collection was made increasingly efficient. In the decades between the 1850 decades and 1880 decades, the right to collect the tax was auctioned out to contractors. These contractors tried to extract as high a tax as they could to recover the money they had paid to the estate and earned as much profit as they could within the year. By the 1880 decades, the government began collecting taxes directly from the pastoralists. Each of them was given a pass to enter a grazing tract. A cattle herder had to show the pass and pay the tax. The number of cattle heads he had and the amount of tax he paid was entered on the pass.
अब यहाँ देखिए क्या कि वन अधिकारियों ने चरवाहों की ज़िंदगी बदल 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 डाली। अब उन्हें जंगलों में जाने से रोक दिया गया, जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत था। देखिए जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई, देखिए यहाँ पर क्या, जिन क्षेत्रों पर उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए परमिट लेना पड़ता था। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगलों में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी। देखिए जंगलों में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी, और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितना भी क्यों ना हो, और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। अब देखिए तीसरी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तीसरी बात आपको देखिए, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। एक मिनट यहाँ पर रुकिए। देखिए अंग्रेज एक आगे देखिए, अंग्रेज लोग यहाँ पर जो आपको है, देखिए यहाँ पर आपको कहा कि अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ बेचने वाले कारीगरों, व्यापारी और अपने लेबर के लिए हर साल नए-नए चरागाह की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना, उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम, देखिए यहाँ पर घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत 10 कारों, व्यापारी और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया है। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया है। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अधिसूचित गाँव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उसकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी। ग्राम पुलिस उन पर ही सदा नजर रखने लगी। चौथी बात यह थी कि अपनी आमदनी बढ़ाने के अंग्रेज लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ें और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। चरवाहों से चरागाह में चरने वाले एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। प्रति मवेशी टैक्स की दर से तेजी से बढ़ती चली गई। और टैक्स वसूलने की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850-1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कम बनाने के लिए जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। अब देखिए 1880 के दशक तक आते थे, सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूल कर हम देखिए क्या कि चाहे उतना, यदि 1880 के दशक तक आते थे, सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहों को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरागाह में
किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहों के साथ कितने जानवर हैं और कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए इसमें जो आपको एक्टिविटी दिया गया, सोर्स दिया गया, उसको देख लीजिए। पहले सोर्स आपके यहाँ पर कहा गया, देखिए इन 19 देखिए सोर्स डी की बात करते इन 1920 ए रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिपोर्टेड। देखिए द एक्सटेंट ऑफ द एरिया अवेलेबल फॉर grazing has gone down tremendously with the extension of area under cultivation because of increasing population, extension of irrigation facilities, acquiring the pasture for government purposes, for example। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटल फार्म्स नो ब्रीडर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज large herds, thus their earnings have gone down। देखिए the quality of their livestock has deteriorated, देखिए dietary standards have fallen and indebtedness has increased। देखिए 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बढ़ती आबादी, सिंचाई सुविधा के विस्तार और रक्षा उद्योग एवं कृषि प्रायोगिक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चरागाहों के अधिग्रहण की वजह से चरवाही के लिए उपलब्ध इलाकों के क्षेत्र में बहुत भारी गिरावट आई है। पशुपालकों को बड़े लेबर रखने में मुश्किल पैदा हो रही है। इसकी वजह से उनकी आमदनी में गिरावट आई है। उनके जानवरों की गुणवत्ता और खुराक गिर गई है और कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। फिर आपको आगे यहाँ देखिए एक्टिविटी की जो बात आपके यहाँ पर की, उसको यहाँ पर देखिए एक्टिविटी की जो देखिए इमेजिन यू आर लिविंग इन 1890 डिकेड्स, यू बीइंग टू कम्युनिटी ऑफ नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन, यू लर्न दैट द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड योर community has a criminal tribe। Describe briefly what you would have left and done, describe briefly what you would have felt and done। Write a petition to the local collector explaining why the act is unjust and how it will affect your life। कल्पना कीजिए कि आप 19वीं सदी के आखिरी साल यानी सन 1890 के आसपास रहे हैं। आप घुमंतू चरवाहों या कारीगरों के एक समुदाय के ताल्लुक रखते हैं। आपको पता चला कि सरकार ने आपके समुदाय को आपराधिक समुदाय घोषित कर दिया है। संक्षेप में बताइए कि यह जानकर आपको कैसा महसूस होता है और आप क्या करते हैं। स्थानीय कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर बताइए कि आपके नज़र में यह कानून किस तरह अन्यायपूर्ण है और इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। अभी आपको आगे यहाँ पे आगे देखिए एक यहाँ पर आपको मैप भी आपके यहाँ पर दिया है, उस मैप को थोड़ा सा पहले देख लीजिए। ये जो मैप आप यहाँ पर देख रही है, मैप आपको भारत में चरवाहा समुदाय, देखिए यहाँ पर जितने भी आप इस मैप में जो भी लोकेशन है वो भारत में चरवाहा समुदाय का आपको है। देखिए यहाँ पर पेस्टोरलिस्ट इंडिया मतलब भारत में चरवाहा समुदाय का भी यहाँ पर है। दिस मैप इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द ओनली दोज पेस्टोरल कम्युनिटीज मेंशन इन द चैप्टर। देयर आर मेनी अदर लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस नक्शे में केवल उन चरवाहा समुदाय के इलाकों को उल्लेख किया गया जिनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। इनके अलावा हमारे देश में कई और चरवाहा समुदाय हैं। यहाँ पर आपको मैप दिया है जहाँ आपको आप मुख्य रूप से है। अब यहाँ पर एक जो देखिए हाउ डिड हाँ, तो यहाँ पर जो आपको कहा गया है, देखिए इसमें जो खास चीज़ें आपको है, देखिए क्या हाउ डिड दी चेंजेज अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट की बात की गई। देखिए हाउ डिड दी चेंजेज अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट की बात करते हैं। हाउ डिड दी चेंजेज अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट होता है। हाउ डिड दी चेंजेज अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट। इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया, उसको यहाँ पर देखिए। इन चीज़ों की बहुत सारी देखिए यहाँ पर क्या कि दीज मेजर्स लेड टू ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ पास when grazing lands were taken over and turned into cultivated fields। The available area of pasture land declined। Similarly, the reservation of forest meant that sheep herds and cattle herders could no longer freely pasture their cattle in the forest।
इन चीज़ों की वजह से देखो, इन चीज़ों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों के और सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गैरियों और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसे आज़ादी से नहीं चला सकते थे। देखिए, हैज पास्चर लैंड्स disappear under the flood, the existing animal stock had to feed on whatever grazing land remained. This led to continuous intensive grazing of these pastures. Usually, nomadic pastoralists graze their animals in one area and move to another area. This pastoral movement allowed time for natural restoration of vegetation growth. When restrictions were imposed when restriction over imposed when restriction over imposed when restriction देखिए when restriction देखिए when restriction were imposed on pastoral movements। When restriction देखिए यहाँ पर क्या है कि when restriction were imposed on pastoral movement grazing lands came to be continuously when restriction were imposed on pastoral movements grazing lands came to be continuously used and the quality of pasture declined. This in turn created a further shortage of forage for animals and deterioration of animal stock. Underfed cattle died in large numbers during scarcity and famines। तो खास चीज़ आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि इन चीज़ों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। इन चीज़ों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे से ज़्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गृहस्थी और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसे आज़ादी से नहीं चला सकते थे। और जब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुछ चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चरागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतु चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाह भी इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे। लेकिन चरवाहों के आवाजाही पर लगी बंदी से और चरवाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे कमी और जब तक पड़ने वाला आकार की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या मरने लगे। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि हाउ डिड पेस्टोरिस्ट कॉफ विथ दिस चेंजेज चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। वो कैसे किया, इसको यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपको ये कहा गया हाउ डिड द पेस्टोरिस्ट कॉप सामना करना कॉप विथ दिस चेंजेज। देखिए पेस्टोरिस्ट रिएक्टेड अब यहाँ देखिए पेस्टोरिस्ट रिएक्टेड टू दी चेंजेज इन अ वैरायटी ऑफ वेज। some reduce the number of cattle in their herds since there was not enough pasture to feed large numbers. Others discovers new pasture when movement to old grazing grounds became difficult. After 1947, the camel and sheep herding records, for instance, could no longer move into Sindh and graze their camel on the banks of the Indus had done earlier. The new political boundaries between India and Pakistan stopped their movement, so they had to find new places to go. In recent years, they have been migrating to Haryana, where sheep can graze on agricultural fields after the harvest are cut. This is the time that the fields need manure that the animal provide.
देखिए यहाँ पे जो आपको कहा इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। इन बदलावों पर देखिए इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। देखिए कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चरागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने वाले रायका 1927 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना सिंधु नदी किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी चाहिए। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशी को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की जरूरत रहती थी, जो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती है। देखिए ओवर द ईयर्स यहाँ पे क्या कि ओवर द ईयर्स देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि ओवर द ईयर सम रिचर pastoralists began buying land and settling down, giving up their nomadic life. Some became settled peasants cultivating lands. Others looked to more extensive trading. Many poor pastoralists, on the other hand, borrowed money from moneylenders to survive. Eight times यहाँ देखिए 8 times they lost their cattle, 8 times they lost their cattle and sheep and became laborers working on fields or in small towns. देखिए yet pastoralists not only continue to survive in many regions, their numbers have expanded over recent decades. When pasture lands in one place was close to them, they changed the direction of their movement, reduced the size of the herd, combined pastoral activity with other forms of income, and adapted to the changes in the modern world. Many ecologists believe that in dry regions and in mountains, pastoralism is still ecologically the most viable form of life. Such changes यहाँ पे क्या कि such changes were not experienced only by pastoral communities in India. In many other parts of the world, new laws and settlement patterns were forced pastoral communities to alter their lives. How did pastoral communities elsewhere cope with these changes? How did pastoral communities elsewhere cope with these changes in the modern world? अब देखिए इन चरवाहों के इसमें जो आपको कहा गया देखिए इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आए। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। बहुत सारे जानवरों को चराने का पहली तरह बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चरागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया था, तो कुछ चरवाहों ने नए चारागाह ढूंढ रहे। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालकों ने रायका 1927 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों से आ सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा से उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया गया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने की नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। देखिए इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत हो जाती थी, जो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती थी। समय गुजरने के साथ देखिए यहाँ पर जो ओवर द ईयर्स मतलब समय गुजरने के साथ या साल गुजरने के साथ, साल बीतने के साथ, देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया, तो इसमें आपको देखिए समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीद कर एक जगह बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वे कुछ सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इन सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है।
देखिए यहाँ पर क्या कि जब भी किसी इलाके के चरागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती है, जब भी किसी इलाके के चरागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती है और वे अपनी दिशा बदल लेते हैं, लेबल छोटा कर लेते हैं और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते हैं। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यावहारिक रास्ता है। देखिए बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं हो थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसाहट के नए मतलब बसना जिसे बोलते हैं रहने के बसाहट या रहने के नए तौर तरीकों उन्होंने आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलाव के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का ढाला बदलने पर मजबूर कर दिया। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देश से देखिए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों से ने क्या रास्ते अपनाए, फिर यहाँ आप देखिए इसके बाद देखिए पेस्टोरिज्म इन अफ्रीका की बात की गई। पेस्टोरिज्म इन अफ्रीका की थोड़ा सा देख लेते हैं। पेस्टोरिज्म इन अफ्रीका आपको है एक इमेज यहाँ पर आपको देखिए शो किया गया पेस्टोरिज्म अफ्रीका। यहाँ पर देखिए जो आपको है ए व्यू ऑफ मसाई लैंड। देखिए यहाँ पर क्या ए व्यू ऑफ मसाई लैंड विथ किलिमंजारो इन द बैकग्राउंड। यहाँ देखिए क्या है कि फोर्स्ड बाय चेंजिंग कंडीशन द मसाई हैव ग्रोन डिपेंडेंट ऑन फूड प्रोड्यूस इन अदर एरिया सच एज मेज मील rice, potatoes, cabbage. Traditionally the Maasai frowned upon this. देखिए Maasai believed that tilling the land for crop farming is crimes against nature. Once you cultivate the land, it is no longer suitable for grazing. यहाँ हम देखिए क्या कि बदलती परिस्थितियाँ एक खास देखिए हम क्या बदलती परिस्थितियों का कारण मसाई मक्का चावल आलू गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे थे जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए ज़मीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप ज़मीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाही मतलब चलाने के लायक नहीं रहती है। और उसके बाद एक यहाँ पर जो आपको कहा गया है अफ्रीका पेस्टोरिज्म इन अफ्रीका की बात आपको की गई है उसको यहाँ पर देखिए। पेस्टोरिज्म इन अफ्रीका की जो बात की उसको यहाँ देखिए लेट अस मूव टू अफ्रीका। देखिए लेट अस मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर हाफ द वेयर देखिए लेट अस मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर हाफ द वर्ल्ड्स पेस्टोरल पॉपुलेशन लाइव्स। इवन टुडे ओवर 22 million Africans depend on some form of pastoral activity for their livelihood. देखो they include communities like Bedouins, Berbers, Masai, Somali, Boron and Turkana. देखिए यहाँ पर क्या most of them now live in the semi-arid grasslands or arid deserts where rain-fed agriculture is difficult. देखिए यहाँ पर they raise cattle, camels, goats, sheep and donkeys and they sell milk, meat, animal skin and wool. देखिए some also earn through trade and transport. Other combined pastoral activity with agriculture. Still others do a variety of odd jobs to supplement their meagre and uncertain earning from pastoralism. Like pastoralists in India, the lives of African pastoralists have changed dramatically over the colonial and post-colonial periods. What have these changes been? देखिए आइए अब अफ्रीका की तरफ चले जहाँ दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी चरवाहा रहती जहाँ आधी ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित है। इनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सुमारी, बुरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल है। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तान रहते हैं जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय बैल यहाँ के चरवाहे आपको गाय बैल ऊँट बकरी भेड़ एवं गधे पालते हैं और दूध मांस पशुओं की खाल एवं ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे देखिए यहाँ पर क्या कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाले मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरफ अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल
में गहरे बदलाव आए हैं। आखिर क्या थे ये बदलाव? अब यहाँ पे एक खास देखिए, इसमें देखिए आपको इमेज जो आपके यहाँ पर शो किया, देखिए पेस्टोरल कम्युनिटीज इन अफ्रीका के यहाँ पे इमेज शो किया गया। पेस्टोरल कम्युनिटीज इन अफ्रीका आपको है, तो अफ्रीका के चरवाहा समुदाय का यहाँ पर आपको है। देखिए द इंसेक्ट, देखिए द इंसेक्ट शो द लोकेशन ऑफ मसाई इन केनिया एंड तंजानिया। छोटी तस्वीर इंसेक्ट में केनिया और तंजानिया में मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। अब हम देखिए क्या कि वी विल डिस्कस, देखिए यहाँ पर वी विल डिस्कस क्या, हम देखिए क्या, वी विल डिस्कस सम ऑफ द चेंजेस, वी विल डिस्कस सम ऑफ द चेंजेस बाय लुकिंग एट वन पेस्टोरल कम्युनिटीज द मसाई इन सम डिटेल। द मसाई डिकेटर हर्डर्स लिव primarily in East Africa, 3 lakh in southern Kenya and another 1,50,000 in Tanzania. We will see how new laws and regulation took away their land and restricted their movement. They affected this affected their lives. This affected their lives in times of drought and even reshaped their social relationship. अभी इस लाइन के ऊपर देखिए, we will see how new laws and regulation took away their land and restricted their movement. This affected their lives in times of drought and even reshaped their social relationship. देखिए यहाँ पर इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1,50,000 लोग तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह के उनकी ज़मीन न कि उनकी ज़मीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां लोग थोप दी है। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई है और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए हैं। यहाँ देखिए क्या कि एक वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड गॉन, देखिए वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड गॉन। यहाँ देखिए क्या कि वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड गॉन, देखिए चरागाहों का क्या हुआ। वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड गॉन मतलब चराने वाली भूमि, घास वाली भूमि का क्या हुआ। देखिए वन ऑफ द प्रॉब्लम द मसाई हैव फेस्ड इज द कंडीशन लॉस ऑफ one of the problem the Maasai have faced is the continuous loss of their grazing land. Before colonial times, Maasai land stretches over a vast area from North Kenya to the steppes of northern Tanzania. In the late 19th century, European imperial powers scrambled for territorial possessions in Africa, slicing up the region into different colonies. In 1885, Maasai land was cut into half, an international boundary between British Kenya and German Tanzania. Subsequently, the best grazing land were gradually taken over for white settlement, and Maasai were pushed into a small area in South Kenya and North Tanzania. The Maasai lost about 60% of their pre-colonial lands. They were confined to an arid zone with uncertain rainfall and poor pastures. देखिए from the late 19th century, the British colonial government from the late 19th century, the British colonial government in East Africa also encouraged local peasants community. From the late 19th century, the British colonial government in East Africa also encouraged local peasants communities to expand cultivation. As cultivation expanded, pasture lands were turned into cultivated fields. In pre-colonial times, the Maasai pastoralists had dominated their agricultural neighbors both economically and politically. By the end of colonial rule, the situation had reversed. फिर देखिए क्या कि लार्ज एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड वर आल्सो टर्न्ड इनटू गेम रिजर्व्स लाइक द मासाई मारा एंड Samburu National Park in Kenya and
Serengeti Park in Tanzania. देखिए pastoralists were not allowed to enter the reserves. They could neither hunt animals nor graze their herds in these areas. Very often these reserves were in areas that had traditionally been regular grazing grounds for Maasai herds. The Serengeti National Park, for instance, was created over 14,760 kilometers of Maasai grazing land. यहाँ देखिए क्या कि मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि ये उनके चरागाह की मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनके चरागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी केन्या से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों स्टेपी तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत से इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील कर उन्हें अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1850 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के दो बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के समय सरकार ने गोरे को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा मतलब 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहाँ ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चरागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे चरागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चरागाहों का शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया मसाई मारा एवं सांब्रू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेगेंटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में ना तो वे शिकार कर सकते थे और ना ही वे अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत से आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 किलोमीटर भी देखिए मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र पर मसाइयों के चरागाह पर कब्जा करके बनाया गया था। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर एक्टिविटी तो नहीं कर सकते हैं, कुछ और ही है। इसको देखिए ऑन तंजानिका देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए कि ऑन तंजानिका के बारे में क्या देखिए ऑन तंजानिका देखिए ऑन तांगानिका यहाँ पर देखिए ऑन तांगानिका के बारे में देखिए यहाँ पर क्या ब्रिटेन कंक्वर व्हाट हैड जर्मन ईस्ट अफ्रीका ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1919 Tanganyika came under British control. It attained independence in 1961 and united with Zanzibar to form Tanzania in 1964. ब्रिटेन की ने पहले विश्व युद्ध में उस इलाकों पर कब्जा कर लिया जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। 1919 में तंगानिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। 1961 में उसे आज़ादी मिली और 1964 में जंजीबार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नया नाम दिया गया। फिर देखिए यहाँ पर जो इमेज उसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ देखिए विदाउट ग्रास लाइव स्टॉक कैटल गोट्स एंड शीप आर मेल नॉरिशेड which means less food available for families and their children. देखिए the areas hardest hit by drought and food shortage are in the vicinity of Amboseli National Park, which last year generated approximately 240 million Kenyan shillings, estimated $3.5 million US from tourism. In addition, the Kilimanjaro water project cuts through the communities of this area, but the villagers are barred from using the water for irrigation or for livestock.
देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया क्या कि इसमें जो आपको कहा गया, देखिए घास के बिना पशु मवेशी बकरी और भेड़ कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि चरवाहों के परिवार और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। और सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका असम अम्बोसेरी नेशनल पार्क में आसपास के रहते हैं, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन शिलिंग लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। क्लिमजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय ना तो पीने के लिए और ना ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज अभी आपको यहाँ पर शो किया, फिर आप आगे का इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आगे का इमेज आपको यहाँ पर देखिए द टाइटल, देखिए यहाँ पर द टाइटल मसाई डिराइव्स फ्रॉम द ओल्ड मासाई। देखिए मासाई मीन्स माई पीपुल। द मसाई आर ट्रेडिशनली नोमैडिक एंड पेस्टोरल पीपल who depend on milk and meat for subsistence. देखिए हाई टेम्परेचर combined with low rainfall to create condition which are dry, and extremely hot. Drought condition are common in the semi-arid land of equatorial heat. Such times pastoral animals die in large numbers. अब आगे यहाँ पर आपको है क्या, इसमें आपको देखिए मसाई नाम या मसाई नाम माँ सबसे निकला है। मासाई का देखिए मासाई का मतलब होता है मेरे लोग, मासाई के लोग का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतु और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ सूक्ष्म धूल और भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्ध सूक्ष्म पर्वतीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य है। ऐसे समय बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। अब आगे हम देखिए क्या सोच की बात की, ई की बात यहाँ हम करते हैं। देखिए यहाँ पर जो खास बात आपको कही गई उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए पेस्टोरल कम्युनिटीज एल्सवेयर इन अफ्रीका फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स इन नामीबिया। देखिए इन साउथ वेस्ट अफ्रीका द काउ कोलैंड हर्डर्स ट्रेडिशनली मूव्ड बिटवीन काउ कोलैंड एंड नियरबाई ओबम्बोलैंड एंड दे सोल्ड स्किन मीट एंड अदर ट्रेड प्रोडक्ट इन नेबरिंग मार्केट्स। ऑल दिस वाज स्टॉप्ड with the new system of territorial boundaries that restricted movement between regions. The nomadic cattle herders of Cow-land in Namibia complained, like, we have difficulty, we cry, we are in prison, we don't know, why we are looked up, we are in jail, we have no place to live, we cannot go meet from the south. Our sleeping skins cannot be sent out. Overboland is closed for us. We live in Overboland for a long time. We want to take our cattle there. Also our sheep and goats. The borders are closed. The borders place us heavily. देखिए we cannot live. देखिए statement of cow Coland herders Namibia 1949. देखिए quoted in इसमें क्या अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरागाहों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काउ कोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काउ कोलैंड और पास में ही स्थित ओबाम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। वे लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त और अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर के इलाकों में उनके आने जाने पर गहरी पाबंदी लगा दी, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। नामीबिया स्थित काउ कोलैंड के घुमंतु पशुपालकों की शिकायत थी कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया है, हम जेल में हैं। देखिए हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खानों को बाहर नहीं भेज सकते। ओबामा देखो ओम्बाम्बोलैंड अब हमारे बंद हो चुका है। ओबाम्बोलैंड अब हमारे बंद हो चुका है। हम लंबे समय तक ओबाम्बोलैंड में रहे हैं। अब हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों और बकरियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद है, ये सीमाएं हमें मार दे रही है, जीना मुश्किल है। ये आपको देखिए नामीबिया स्थित काउ कोलैंड के चरवाहों का बयान था। अब उसके बाद आगे यहाँ पर है
एक यहाँ पर आपको और सोर्स दिया गया, उसको यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। इसमें जो कहा गया देखिए, इन मोस्ट प्लेस, देखिए आप इन मोस्ट प्लेस ऑफ कॉलोनियल, इन मोस्ट प्लेस ऑफ क्या, इन मोस्ट प्लेस ऑफ क्या, इन मोस्ट प्लेस ऑफ कॉलोनियल अफ्रीका द पुलिस वाज गिवन इंस्ट्रक्शन टू कीप वॉच ऑन द मूवमेंट ऑफ पेस्टोलिस्ट, देखिए एंड प्रिवेंट देम, देखिए एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम इंटरिंग वाइट एरिया। द फॉलोइंग इज वन सच instruction given by a magistrate to the police in southwest Africa restricting the movement of the pastoralists of Coland in Namibia। देखिए यहाँ पे क्या कि पासेज टू इंटर, देखिए पासेज टू इंटर द टेरिटरी शुड नॉट बी गिवन टू दिस नेटिव अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस नेसेसिटीज दे आर इंटरिंग। द ऑब्जेक्ट ऑफ द, देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ द अबव proclamation is to restrict the number of native entering the territory and to keep a check on them, and ordinary visiting passes should therefore never be issued to them। देखिए यहाँ पर क्या, इसके बाद आपको इसमें एक और जो आपको यहाँ पर है क्या शुरुआत में कुछ छः में देखिए आपको एफ में इसमें कहा गया कि औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे, औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिसों को चरवाहों के आने जाने पर नजर रखने और उन्हें गोरे के इलाके में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया। नामीबिया में काओ कोलैंड के चरवाहों को आने जाने पर पाबंदी लगाने के दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा एक निर्देश दिया था, जब तक कोई बहुत खास हालत पता न हो तब तक इन मूल निवासियों के इलाके में दाखिल होने के लिए पाजाई न किया जाए। इस आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना और उन्हें काबू में रखना, इसलिए उन्हें समान यात्री पास किसी भी हालत में जारी न किया जाए। अब यहाँ पर एक खास देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए यहाँ पर क्या द लॉस ऑफ द finest grazing land and water created pressure on the small area of the land that the Maasai were confined within. The continuous grazing within a small area inevitably meant a deterioration of the quality of pastures. Fodder was always in short supply. Feeding the cattle became a persistent problem। देखिए यहाँ पर क्या कि अच्छे चरागाहों, देखिए यहाँ पर क्या अच्छे चरागाहों और जल संसाधनों के देखिए अच्छे चरागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चरागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी और मवेशियों का पेट भरना एक अस्थायी समस्या बन गया। फिर आपको आगे देखिए इसमें आगे आपको यहाँ पर क्या कि द बॉर्डर्स आर क्लोज, देखिए द बॉर्डर्स आर क्लोज की बात की, सरहदें बंद हो गई, सरहदें आपको बंद हो गए। अब देखिए इन द 19th century, देखिए इन द 19th century African pastoralists could move over vast areas in search of pastures. When the pastures were exhausted in one place, they moved to a different area to graze their cattle. From the late 19th century, the colonial government began imposing various restrictions on their mobility. Like the Maasai, other pastoral groups were also forced to live within the confines of special reserves. The boundaries of these reserves became the limits within which they could now move. They were not allowed to move out with their stock without special permits, and it was difficult to get permits without trouble and harassment. Those found guilty of disobeying the rules were severely punished। देखिए 19वीं सदी में चरागाह खोज में बहुत दूर तक आपको बहुत दूर तक चले जाते थे। और जब एक जगह चरागाह सूख जाते थे तो वे अपने लेबर लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों तक अपनी सरकार उनकी आवाज़ें पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगाने लगी। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमा में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के आर पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट के लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। देखिए यहाँ पर क्या कि पेस्टोलिस्ट, यहाँ देखिए क्या कि फिर आपको यहाँ पेस्टोलिस्ट वर आल्सो नॉट अलाउड टू इंटर द मार्केट्स इन वाइट एरियाज इन मैनी रीजन। दे वर इन मैनी रीजन, देखिए यहाँ पर क्या इन मैनी रीजन्स दे वर in many regions they were prohibited from participating in any form of trade. White settlers and European colonists saw pastoralists as dangerous and savage. People with
People with whom all contact had to be minimized. Cutting off all links was, however, never really possible because white colonists had to depend on black labor to bore mines and build roads and towns. अब देखिए क्या चरवाहों को गोरे इलाकों में चरवाहों को देखिए चरवाहों को गोरे के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत से इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाले मानते थे। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना भी उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से मार निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कारों के श्रम का ही भरोसा था। अब द न्यू territorial boundaries and restriction imposed on them suddenly changed the lives of pastoralists. This adversely affected both their pastorals and trading activities. Earlier pastoralists not only looked after animal herds and animal herds but trade in various produce traded in various products. यहाँ देखिए the restriction under colonial rule did not entirely stop their trading activities, but they were now subject to various restrictions. अब यहाँ देखिए क्या कि एक खास बात जो यहाँ पर कहा, नई सरहदों ने चरवाहों की ज़िंदगी रातों रात बदल डाली। नई सरहदों ने चरवाहों की ज़िंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियाँ और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारी दोनों तरह की गतिविधियों बहुत बुरा असर पड़ा। अब यहाँ देखिए क्या, अब चरवाहों देखिए यहाँ पर क्या कि अब तक चरवाहों को न केवल अपने मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी क्या करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। अब एक देखिए यहाँ पर क्या कि एक खास बात यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पर है क्या, देखिए आपको व्हेन पास्चर्स ड्राई, देखिए व्हेन पास्चर्स ड्राई, जब चारागाह सूख जाते हैं व्हेन पास्चर ड्राई। अभी देखिए यहाँ पर जो आपको है देखिए ड्राउट अफेक्ट द लाइफ ऑफ pastoralists everywhere. When rain fell and pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to areas where forage is available. That is why traditionally pastoralists are nomadic. They move from place to place. This nomadism allows them to survive bad times and avoid crises. देखिए from the colonial period the Maasai were bound down to a fixed area, confined within a reserve, and prohibited from moving and prohibited देखिए यहाँ पर क्या है कि and prohibited from moving in search of pasture. देखिए they were cut off from the best grazing land and forced to live within a semi-arid tract prone to frequent droughts. Since they could not shift their cattle to place where pastures were available. Large numbers of Maasai cattle died of starvation and disease in these years of drought. An inquiry in 1930 showed that the Maasai in Kenya possessed 700 देखिए यहाँ पर क्या है कि 720,000 cattle, 820,000 sheep and 170,000 donkeys. In just 2 years of severe drought, 1933 and 1934, over half the cattle in the Maasai reserve died. Had the area of grazing land shrank, the adverse effect of the drought increased in intensity, and the frequent bad years led to a steady decline of the animal stock of the pastoralist.
देखिए यहाँ पर क्या है, जब चरागाह सूख जाते हैं तो देखिए सारा सूखा दुनिया, देखिए यहाँ कि सूखा दुनिया भर के चरवाहों की ज़िंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती, चरागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाकों में ना ले जाया जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाते हैं। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतू पने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। देखिए, लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाई को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाई को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और यहाँ पर देखिए क्या कि और चरवाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चरागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी शुष्क पट्टी पर रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चरागाह मिल सकते थे। इस सूखे के सालों में मसाई के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। देखिए 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे आपको चरने की जगह स्वीकृति गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट होती गई। और फिर उसके बाद आपको आगे यहाँ पर है क्या, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। यहाँ कुछ इमेज भी आपको दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर क्या कि देखिए नोट हाउ द वॉरियर्स वियर ट्रेडिशनल डीप रेड सुकाज, ब्राइटली beaded Masai jewelry and carry 5 foot steel tipped spears. Their long plates of intricately plaited hair are tinted red with oak clay. As per tradition, their face is to honor the rising sun. Warriors are in charge of society's security, while boys are responsible for herding livestock. During the drought season, both warriors and boys assume responsibility for herding livestock. अब देखिए योद्धा गहरे लाल रंग की सूक्ष्म और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं। यहाँ पर देखिए क्या एक योद्धा, देखिए यहाँ पे योद्धा गहरे लाल रंग की सूखा और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं। स्टील की नोक वाले 5 फुट लंबा बाल रखते हैं। देखिए बारीकी से संवारे गए उनके बाल गेरू से रंगे होते हैं। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशु चराते हैं। सूखे के मौसम योद्धाओं और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। अब आके यहाँ पे देखिए क्या इसमें आगे फिर देखिए नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। आपके यहाँ पर कहा गया कि सभी लोग यहाँ पर क्या सब पर एक जैसा। देखिए आपको क्या कि सब पर एक जैसा आपको प्रभाव, सब पर एक जैसा। इन मसाई लैंड हैज एल्सवेयर इन अफ्रीका, नॉट ऑल द पेस्टोरिस वर इक्वली अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द colonial period. In pre-colonial times, Maasai societies were divided into 2 social categories: elders and warriors. The elders formed the ruling group and met in periodic council to decide on the affairs of community and settle disputes. देखिए the warriors consisted of younger people, mainly responsible for the protection of the tribe. They defended the community and organized cattle raids. Riding was important in a society where cattle was wealth. It is through raids that the power of different pastoral groups was
asserted that young men came to be recognized as members of the warrior class when they proved when they proved their manliness by raiding the character of other pastoral groups and participating in wars. They, however, were subject to the authority of the elders. उसके बाद आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि देखिए औपनिवेशिक काल अफ्रीका के बाकी स्थानों तरह मसाई लैंड में भी आए बदलाव से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश देखिए क्या उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। वरिष्ठ जन देखिए यहाँ पर क्या वरिष्ठ जन एल्डर्स और योद्धा वायर्स वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में देखिए ज़्यादातर नौजवान थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवर की संपत्ति हो वहाँ हमले करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा देखिए यहाँ पर अलग अलग चरवाहा समुदाय की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। फिर आप आगे यहाँ देखिए कि मसाइयों के मामले की देखभाल करने के अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। देखिए उन्होंने कई मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों को पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। अब आगे यहाँ पर आपको है फिर यहाँ आपको देखिए क्या और नॉट ऑल वर इक्वल इफेक्टेड की बात यहाँ पर आपको की गई है। In Masai land as elsewhere in Africa, not all pastoralists were equally affected by the changes in the colonial period. In pre-colonial times, Masai society was divided into two social categories: elders and warriors. The elders formed the ruling group and met in periodic council to decide on the affair of the community and settle disputes. The warrior consisted of younger people, mainly responsible for the protection of the tribe. They defended the community and the organized cattle raids. Raiding was important in society where cattle was wealth. It is through raids that the power of different pastoral groups was asserted. Young men came to be recognized as members of the warriors class when they proved their manliness by raiding the cattle of other pastoral groups and participating in wars. They, however, were subject to the authority of the elders. यहाँ देखिए क्या कि सब ऐसा असर नहीं पड़ा। देखो औपनिवेशिक काल में हम आपको कहा औपनिवेशिक काल अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलाव ऐसे सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। वरिष्ठ जन एल्डर्स और योद्धा वायर्स वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के वे समय समय पर सलाह करते थे। योजनाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने का तैयार किया जाता था। वे समुदाय रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवर ही संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। युवाओं के देखिए यहाँ पर क्या युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वरिष्ठ जनों के नीचे ही रहकर काम करते थे। अब आगे यहाँ क्या इसके देखिए टू एडमिनिस्टर द अफेयर ऑफ मसाई द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ए सीरीज ऑफ मेजर्स दैट हैड इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन। दे अपॉइंटेड चीफ्स ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मसाई who were made responsible for the affairs of the tribe. The British imposed various restrictions on raiding and warfare. Consequently, the traditional authority of both elders and warriors were adversely affected.
देखिए the chiefs appointed by colonial government often accumulated wealth over time. देखिए they had a regular income with which they could buy animals, goods and land. They lent money to poor neighbors who needed cash to pay taxes. Many of them began living in towns and became involved in trade. And their wives and children stayed back in the village to look after the animals. These chiefs managed to survive the devastation of war and drought. They had both pastoral and non-pastoral income and could buy animals when their stock was depleted. देखिए but the life history of the poor pastoralist who depended only on their livestock was different. Most often they did not have the restriction to tide over bad times. In times of war and famine, they lost nearly everything. They had to go in looking for work in the towns. Some eked out of देखिए some eked out a living as charcoal burners. देखिए others did odd jobs. देखिए the lucky could get more regular work in road or building construction. देखिए the social changes in Maasai society occurred at two levels. First the traditional difference based on age between the elders and warriors was disturbed. देखिए though it did not break down entirely. Second, a new distinction between the wealthy and poor pastoralists developed. अब यहाँ पे देखिए क्या एक खास बात देखिए वी सी दैट pastoral communities in different parts of the world are affected in a variety of different ways by changes in the modern world. देखिए new laws and new borders affect the patterns of their movement with increasing restriction on their mobility. Pastoralists find it difficulty to move in search of pasture. Has pasture land disappear, grazing become a problem. While pasture that remain deteriorate through continuous overgrazing. Times of drought become times of crisis when cattle die in large numbers. Yet pastoralists do adapt to new times. They change the paths of their annual movement, reduce their cattle numbers, press for rights to enter new areas, exert political pressure on the government for relief, subsidy, and other forms of support, and demand a right in the management of forest and water resources. Pastoralists are not relics of the past. They are not people who have no place in the modern world. Environmentalists and economists have increasingly come to recognize that pastoral nomadism is a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world. और उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि मसाई के मामले की देखभाल यहाँ पर क्या मसाई के मामले देखभाल करने अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे पैसे लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े. उन्होंने कई मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीलों के कई मसाई उपसमूह मुखिया तय कर दिए और उन्होंने कई मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई. इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी. इन वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता कमजोर हो गई. जैसे जैसे समय बीता अपनी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे. उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे जानवर साजो सामान और ज़मीन खरीद सकते थे. वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के कर्ज पर पैसा देते थे. उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस और व्यापार करने लगे. उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे. उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी. अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे और जानवर खरीद सकते थे. वे चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे. उनकी हालात अलग थी. उनके पास बुरे वक्त का सामना करने अक्सर साधन नहीं होते थे. युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था. तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी. कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था, कोई कुछ और करता था. जिनकी तकदीर अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन का निर्माण कार्य में काम मिल जाता था. और इस तरह मसाई समाज दो स्तरों पर बदलाव आया. वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आए तो परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया. दूसरा अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया.
अब आगे हम देखिए क्या निष्कर्ष ये इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदाय देखिए चरवाहा समुदाय पर अलग अलग तरह के असर पर नए कानूनों और सामूहिक सीमाओं ने उनकी आवाज़ें का ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चरागाह खत्म होते गए जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया और जो चरागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्या पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदी से थोप दी गई और इसलिए वे नए चरागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी हम देखिए क्या फिर भी चरवाहे देखिए यहाँ पर क्या कि फिर भी एक देखिए फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते थे। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे, जानवरों की संख्या कम कर लेते, नए इलाकों में दाखिल होने के हर संभव लेन देन करते और रियायत एवं मदद के सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते थे। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने का अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहाँ से उन्हें खरीदने की कोशिश की जाती है और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अविश्वास को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे कि घुमंतू चरवाहों के जीवन से दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें इमेज देखिए ए रायका शेफर्ड ऑन जयपुर हाईवे। देखिए यहाँ पर क्या हैवी ट्रैफिक ऑन हाईवे हैव मेड माइग्रेशन ऑफ शेफर्ड्स ए न्यू एक्सपीरियंस। यहाँ देखिए क्या कि जयपुर राजमार्ग पर देखिए रायका गड़रिये के आमद फिर बड़ी सड़कों पर बड़ी भारी यातायात ने गड़रियों के नए इलाके में जाने की प्रक्रिया एक नया अनुभव बना दिया है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर है अब यहाँ के एक्टिविटी यहाँ पर दिया गया देखिए इमेजिन दैट इट इज 1950 एंड यू आर ए 60-year-old रायका आर herder living in post independence India. You are telling your granddaughter about the changes which have taken place in your lifestyle after independence. What would you say? देखिए इमेजिन दैट देखिए यहाँ पर क्या कल्पना कीजिए 1950 का समय है और आप 60 वर्ष से रायका पर सुपारक हैं। आप अपनी पोती को बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद से आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, आप उसे कैसे बताएंगे। इमेजिन दैट यू हैव बीन आस्क्ड बाय फेमस मैगजीन दैट टू राइट एन आर्टिकल अबाउट द लाइफ एंड कस्टम ऑफ द मसाई इन प्री कॉलोनियल अफ्रीका। राइट द आर्टिकल गिविंग इट एन इंटरेस्टिंग टाइटल। मान लीजिए कि आपको जो एक प्रसिद्ध पत्रिका उपनिवेशवाद से पर अफ्रीका में मसाइयों की स्थिति के बारे में एक लेख लिखने के कहा है, वह लेख लिखिए और उसे एक सुंदर शीर्षक दीजिए। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर आपको है एक्टिविटी। यहाँ देखिए क्लास 9 का हिस्ट्री पूरा से फिनिश होता है। अब आपको